as Avishkar Guidance Program. And this program is being held on behalf of JIT Management, JIT Administration, especially the head of the institute, our principal Dr. Salma Sattar. And we formally start this program, and it is our culture and custom both that before starting any program, we have to select a leader or a guide to proceed it further. So unluckily, today's program's president and the guide is our principal man, Dr. Salma Sattar, who is at present not with us, but she has given her consent for being the president of this program. Therefore, I second the same and announce once again Dr. Salma Sattar as the president of today's program, Avishkar Guidance Program. Or any learner, whether he is teacher or student, is known by his qualitative works. So there is none other than, or no work is greater than Avishkar itself. So it is our great honor, it is our honor that our college is not only participating in Avishkar programs but also conducting some guidance program. Now for the aims and first for the felicitation of our resource person who has come to our college from Nagpur College, who has been serving there for the last 2-3 years, and he has served in many other colleges also. And to his accolade, there are so many different honors as well. He has so many publications to his name. He was in 2023. So I think our resource person is himself a paramount example of this Avishkar program. For the felicitation of our resource person, I very humbly call upon Dr. Muhammad Ismail Muhammad Ibrahim sir, who is the coordinator of Avishkar committee, to felicitate our resource person, Dr. Imran Sheikh. Once again, we wish you welcome for being a part of the program. Now we move further and we start the aims and objectives of this program. So for this purpose, I call upon the coordinator of Avishkar Cell, Dr. Muhammad Ismail Muhammad Ibrahim. Please. Thank you, Good morning, all of you. Dear students, very prestigious competition conducted at the college level as well as zonal level at Nashik as well as university level. So today, we, the Department of Zoology as well as Avishkar Cell, we have conducted a guidance program. The aim of today's Avishkar guidance program is to inspire and prepare our students for innovative research. The objectives are to guide them in selecting relevant research topics, developing proposals and enhancing presentation skills. Proposals and enhancing presentation skills so that they can contribute. So my today's title is Avishkar Innovation in Higher Education, right? So this will be outline of my this will be the outline of my lecture, where we are going to first of all to see what are the background of this Avishkar and what is the introduction. Then the second one will be who can apply. Okay. The third one will be the categories, competition level, Avishkar, it is invention or innovation, things which matter, few past example in order to understand how you can basically make your projects, and how to prepare the posters, fellowships and trials, right? तो आज का जो बेसिकली जो लेक्चर है ये मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली डिजाइन किया है ताकि आप लोग सिंपली इसको क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे, और बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो जो आविष्कार है ये अगर आप देखोगे तो 2006 में इसको बेसिकली इनिशिएट किया गया है, और इसको इनिशिएट जो किया गया है वो किसने किया, हमारे जो फॉर्मर गवर्नर थे
और जिसे हम चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी कहते हैं, एस.एम. कृष्णा, इन्होंने इसको इनिशिएट किया। अब इनिशिएट तो कर दिया, पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव था इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड नर्चर द रिसर्च अमंग द स्टूडेंट्स। तो आप जैसे जो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी में जो रिसर्च है उसको नर्चर करना और उसको प्रमोट करना क्या था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा कि हमें पता है कि हमारे जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, जो यंग माइंड से बेसिकली महाराष्ट्र के हो या फिर मालेगांव के हो या फिर जेडी कॉलेज के हो, राइट, तो आप सभी में कुछ ना कुछ एक हिडन बेसिकली टैलेंट छुपा हुआ। तो इस टैलेंट को बेसिकली प्लेटफॉर्म देना, इसका भी बेसिकली क्या है, ये आविष्कार कंपटीशन का एक मकसद है। अगर आप देखोगे थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इस तरीके से है कि जब आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो इसका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल एड भी देना। तो अगर आप में से कोई अगर यूनिवर्सिटी गया था तो वहां पर एक हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर के सामने और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बाजू में एक नई बिल्डिंग वहां पर अभी बेसिकली 2020 और 21 में बनाई गई है। इसका नाम रखा गया है स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेल। क्या नाम है उसका? स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेल। ये जो स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेल है, यहाँ पर क्या होता है कि जो बेसिकली नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जिस तरीके से आविष्कार का जब आप पार्टिसिपेट करोगे, आप अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो बेसिकली वहां पर प्रेजेंट करोगे, तो ये जो सिलेक्ट होते हैं इनको बेसिकली वहां पर क्या किया जाता है, एक रूम दिया जाता है, एक ऑफिस दिया जाता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल एड भी दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती है, राइट। तो ये सारा जो बेसिकली क्या है ऑब्जेक्टिव था आविष्कार को बेसिकली शुरू करने का। नाउ नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई में आप सभी जो यहाँ पर बैठे हुए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप सारे लोग अंडर ग्रेजुएट के हैं, राइट। तो यूजी में जितने भी लोग हैं, चाहे आप बीए में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, आविष्कार में अप्लाई कर सकते हो, राइट। सिर्फ एक कंडीशन है छोटी सी कि आपकी जो एज है वो मोर देन 25 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। एज क्या नहीं होनी चाहिए? मोर देन 25 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। उससे कम एज का होना चाहिए, 24 हो जाए, 23 हो जाए, 22 हो जाए, बिलो 20, राइट। तो ये जितने भी एज वाले सारे एज वाले क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आविष्कार कंपटीशन में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर यहाँ पर एमएससी जिसने किया या एमए किया या फिर एमकॉम किया है, वो लोग भी इसको पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल है। इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन है कि 30 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। पीजी के लिए 30 ईयर्स के ज्यादा एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर आप वहां पर बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लास्ट का अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट पीजी। अब पोस्ट पीजी क्या मतलब, पीजी के बाद एमए एमकॉम एमएससी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिसर्च, राइट। अभी एमफिल तो बेसिकली बंद हो गया है, तो आपको करना पड़ेगा पीएचडी। तो पीएचडी में अगर कोई एनरोल है तो वो पीएचडी वाला भी क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर आविष्कार कंपटीशन में एनरोल कर सकता है। जब मैं 2023 में पीएचडी कर रहा था तब मैंने क्या किया था, 2020 और 23 के आविष्कार कंपटीशन में एनरोल किया, राइट। अब इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो पीएचडी कर रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उस डेट से लेकर तो 5 ईयर्स तक बेसिकली उसके बीच में कभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर ईयर अगर एक्सटेंड हो जाता है, 5 साल से ज्यादा बेसिकली उसको रजिस्ट्रेशन की अगर हो गए, तब वो बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहुत ही एक केस हुआ था जब मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल तक जब मैं पहुंचा, तो वहां पर जब प्रेजेंटेशन हुआ तो प्रेजेंटेशन में एक लेडी थी, वो पीएचडी कर रही थी बेसिकली, तो उसका प्रोजेक्ट प्योर साइंस में वो प्रेजेंट कर रही थी। अब प्योर साइंस में जब उसने प्रेजेंट किया, राइट, तो स्क्रूटिनी जब हुई, जब चेक किए गए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, तो जो कमिटी थी आविष्कार की उसको ये पता चला कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल से ज्यादा हो गया। रजिस्ट्रेशन टाइम क्या हो गया है, 5 साल से ज्यादा हो गया। और ज्यादा होने की वजह से उनको स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पर जहां तक वो पहुंचे थे वैसे उनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। तो हमें लगता है कि ये क्या है कंडीशन, इनको क्या होगा। बट ये प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हो, जब आप स्टेट लेवल पर जाते हो, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, ये सारी चीजें मैटर करती है। आपके हर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपके एडमिशन स्लिप देखे जाएंगे, अगर कोई पीएचडी में है तो उनके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखे जाएंगे, आई कार्ड देखे जाएंगे, कॉलेज के लेटर्स देखे जाएंगे, तो सारे यहाँ पर क्या किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं। तो ये चीजें जो है आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, राइट। नाउ इन विच कैटेगरी वी कैन अप्लाई, है ना, कौन कौन से कैटेगरीज है बेसिकली आविष्कार में। तो सबसे पहले अगर आप आविष्कार की कैटेगरी देखोगे तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरीज है ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस एंड फाइन आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस एंड फाइन आर्ट्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले लैंग्वेज दिया गया है, लिटरेचर दिया गया है, सोशल साइंस दिया गया है, फाइन आर्ट्स है, जर्नलिज्म है, मास मीडिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट बैठता है
तो आप इस कैटेगरी में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से सेकंड अगर आप कैटेगरी देखोगे तो हमारे पास क्या है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड लॉ। तो अगर आपने जो बेसिकली पोस्टर बनाया है, प्रेजेंट आप कर रहे हैं आविष्कार में, वो पोस्टर अगर कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेसिकली अगर फिट बैठता है तो आप क्या कर सकते हो, इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर दिया है कि कवर्स रिसर्च एरियाज लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, लॉ एक्सेट्रा, राइट। लास्ट थर्ड वाला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्योर साइंसेस। हम सब अभी मोस्ट ऑफ द आई थिंक स्टूडेंट्स आर फ्रॉम प्योर साइंसेस, राइट। तो प्योर साइंसेस में अगर आप केमिस्ट्री से हो, केमिस्ट्री अगर आप मेजर कर रहे हो, राइट, या फिर फिजिक्स अगर कर रहे हो, या बॉटनी है, या जूलॉजी है, राइट, तो इन सारे बेसिकली साइंस, इन सारे बेसिकली स्ट्रीम्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो कैटेगरी होगा वो क्या होगा, प्योर साइंसेस होगा। इसके साथ ही साथ हमारे पास क्या है, होम साइंसेस है, फील्ड लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो एनालिटिकल है। तो ये कुछ एरियाज यहाँ पर दिए गए जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पोस्टर है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर कैटेगरी, तो वो है एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो वो कुछ एग्री से अगर रिलेटेड है तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना है। सिमिलरली फिफ्थ अगर आप देखते हो तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेस हैं आप उन सारे ब्रांचेस में क्या कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। ये सिर्फ आपको देखना होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया वो प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट बैठता है या नहीं बैठता। और ये सारी चीजें कौन करेंगी, एक तो आपको भी देखना होगा और आपके जो मेंटर्स हैं उन्हें भी ये बेसिकली क्या करनी होगी, चीजें केयरफुली करनी होगी ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक परफेक्ट कैटेगरी में क्या हो जाए, बेसिकली फिट हो जाए। लास्ट वन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारे पास है मेडिसिन एंड फार्मेसी। मेडिसिन एंड फार्मेसी, तो मेडिसिन एंड फार्मेसी के जितने भी बेसिकली यहाँ पर एरियाज है आप वहां पर क्या कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो, आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। So now the question is there any restriction on categories? For example, आप लोग सोचोगे कि हम साइंस के हैं तो हम आर्ट्स वाली जो कैटेगरीज है वहां पर क्यों अप्लाई करें, क्या हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर फॉर एग्जांपल आप ये भी सोच सकते हो कि हम आर्ट्स के हैं तो हम साइंस की जो कैटेगरीज है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉमर्स के हो तो आप आर्ट्स या कॉमर्स की बेसिकली क्या कर सकते हो, कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो क्या, राइट। तो इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप साइंस साइड में हो तो आप क्या कर सकते हो, आर्ट्स में जो ह्यूमैनिटीज हमने देखा फर्स्ट कैटेगरी उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड लॉ में भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप मेडिसिन एंड फार्मेसी, ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताया इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके का नहीं। क्या आपको साइंस है तो आप प्योर साइंस में आपको कैटेगरी में बेसिकली क्या करना है, तो पोस्टर को प्रेजेंट करना है, ये इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो इन 6 कैटेगरीज में किस कैटेगरी में ज्यादा सुटेबल है, किस कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठ रहा है, राइट।